واجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرضية عالمة غير مؤلفة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بلندتر الصلوات. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. سرکار فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ کے ذکر کے طفیل بانیان کے حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کی مجلس کے جتنے بھی منتظمین ہیں بالخصوص سید سہیل رضوی صاحب، میرا مالک ان کی تمام شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے. آپ تمام احباب کی جتنی بھی حاجات ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، اس مالک کی عزت کا صدقہ وہ قبول و منظور فرمائے. جو بیماروں کو ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے مجھے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہہ رکھا ہے، میرا مالک ان تمام کو مکمل صحت عطا فرمائے. جو بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ذکر کی عزت کا صدقہ ہے، ذکر میں اٹھنے سے پہلے ان پریشانی کو ہمیں محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں انتظار امام معرفت امام کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں بعد از انتظار دیدار امام عطا فرمائے. نصرت امام کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ وسلم. یقیناً مجھ سے پہلے ناظرین منبر برادر ذی وقار سعادت کاظمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ آپ کو پھلانگتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچیں گے. آج کا ذکر مخصوص و منصوب ہے اس شہنشاہ معظم کے ساتھ جو حسین کے بھی امام ہیں، جنہیں نواسہ رسول نہیں کہنا چاہیے، فرزند رسول کہنا چاہیے. شہنشاہ کا تذکرہ ہے بسم اللہ، جس کے حقائق کو مورخ نے چھپایا ہے. بے شک یہ مظلوم تاریخ امام ہے، بے شک جس پہ مورخ کا قلم آج تک ظلم کر رہا ہے، اور محبت کرنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی زبانیں بھی اس امام کے ساتھ انصاف نہیں. تذکرہ امام حسن مجتبیٰ بس سبیل تذکرہ ہوتا ہے، بس چند الفاظ کے ساتھ امام کو خراج پیش کیا جاتا ہے. جبکہ بہار میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ، محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حسین کی محفل میں جلال حسین کی وجہ سے خاموش رہتا تھا. روب حسین اتنا تھا
کہ علی کے بیٹے کہتے کہ جب میں ان کی محفل میں جاتا تھا تو میں حسین کے جلال کی وجہ سے خاموش تھا، اور وہ کہتے ہیں حسن کی محفل میں میں نے حسین کو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میرے وہ امام ہیں جن کے لیے مورخ نے آج تک میری قوم کے بچوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا کہ میرے مولا صلح پسند تھے، امن پسند تھے، اور امت میں اختلاف نہیں چاہتے تھے۔ میں اپنی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی تھی، اور امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی، امام حسین سے جنگ کی۔ اہل بیت یہ رسول کی اہل بیت ہے، اور اس مولا کے لیے رسالت باب کی حدیث معتبر اسناد کے ساتھ قبلہ آصف ملیتی صاحب میری خوش قسمتی تشریف فرما ہے، اور میری پاکستان کی ایک معروف عزادار خاندان کے چشم و چراغ میری مراد آغا صاحب شیر شاہ کے فرزند ارجمند محفل میں تشریف فرما ہے۔ ان دو ہستیوں کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں، معتبر اسناد کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی کہ رسول نے فرمایا حسن و منی، حسین و منی والی حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے، حسن و منی، انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ عربی زبان کا قبلہ تشریف فرمائے ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جب ہم کسی بھی زبان میں، اردو میں، فارسی میں یا انگلش میں، ہم کسی چیز کو مثلا میں یہ کہنا چاہوں نا یہ میری کتاب ہے، تو مجھے اس کتاب کو اپنی کہنے کے لیے میرا علیحدہ کہنا پڑے گا، کتاب میری کتاب۔ اگر اس کو فارسی میں کہیں گے تو کتاب من، انگلش میں کہیں گے تو مائی بک، لیکن جب عربی میں کہا جاتا ہے تو عربی میں علیحدہ لفظ نہیں ہوتا، عربی میں جو لفظ ہے، جو چیز کا نام ہے، اس کے آگے ہی یہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ یا نسبتی کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اب رسول من سے ہوتا ہے، من کا مطلب سے، رسول کہتے ہیں منی مجھ سے، اہل بیت کا رسول سے جو رشتہ ہے وہ من والا ہے۔ باقی رسول کے جتنے رشتے ہیں اصحاب کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں یا امت ہے، ان کا رشتہ جو رسول سے من والا نہیں۔ زوجہ رسول کے ساتھ عقد میں آتی ہے تو صاحب عزت بنتی ہے، امتی کلمہ پڑھتا ہے تو رسول کا امتی بنتا ہے، صحابی صحبت میں بیٹھتا ہے تو رسول کا صحابی بنتا ہے۔ ان کا جو رسول کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر رسول کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو محفل سے نہیں جاتا، وہ صحابی کے درجے سے چلا جاتا ہے، کیونکہ صحابی تھا شرف صحبت کی وجہ سے، شرف ہی نہیں رہا تو پھر اعزاز کیسا؟ بیوی کو طلاق دے دیں تو رشتہ ٹوٹ گیا، امتی کافر ہو جائے تو امت سے نکل گیا، لیکن اہل بیت کے ساتھ رسول کا ایسا رشتہ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت رسول سے، طاہر القادری آج کے دور کے اہل سنت کے جید عالم دین اور حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ اکثر اہل بیت کی محبت میں کتابیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تو انہوں نے امام حسن اور حسین پہ رسول کی اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں اکٹھی کی تھی، اور اکٹھی کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں صرف حدیثیں تھیں امام حسن اور حسین کے متعلق۔ اس کا جو پہلا مقدمہ تھا، جو ٹائٹل تھا اس کتاب کا، اس میں انہوں نے ایک معتبر حدیث لکھی تھی کہ رسالت باب نے کہا کہ سر سے لے کے کمر تک حسن میری شبیہ ہے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میری شبیہ ہے۔ اس کے نیچے انہوں نے متعدد اہل سنت کتابوں کے حوالے دیے کہ یہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول نے کہا ہے سر سے لے کے کمر تک حسن
हूबहू मेरी शबीह, कमर से लेके पांव तक हुसैन हूबहू मेरी शबीह। इसके आगे हदीस की शरह में वो खुद ही लिखते हैं कि इससे मुराद जिस्मानी निस्बत नहीं, उन्होंने शरह लिखी, अपनी शरह अपनी बहस लिखते उन्होंने कहा इससे मुराद जिस्मानी नहीं कि रसूल का बदन जो है वो सर से लेके कमर तक हसन जैसा नहीं, उन्होंने कहा इसमें राज है। उन्होंने कहा इसलिए कि सर से लेके कमर तक के हिस्से में हाथ आता है, कमर से पांव तक के हिस्से में पांव आता है। रसूल कहना चाहते थे कि अगर हसन शर्तें लिखे, हसन नहीं लिख रहा, मैं मोहम्मद लिख रहा हूं, अगर हुसैन हिजरत के लिए मदीना छोड़े तो हुसैन नहीं जा रहा, मैं मोहम्मद जा रहा हूं। जहां तक उन्होंने अपनी शरह लिखी तो उन्होंने साथ ये भी लिखा कि ये मेरी ख्याल है, ये मेरी शरह है कि इस हदीस का असल मतलब ये बनता है। उससे अगली शरह मैं किबला तारुल कादरी साहब से कहना चाहता हूं, जहां आपने इतनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था वहां थोड़ा सा और भी लिख देते कि ये रसूल की सुलह है और ये रसूल की हिजरत है। साथ ये भी लिख देना था कि हसन का कातिल भी रसूल का कातिल है, हुसैन का कातिल भी रसूल का कातिल। जिसने हसन 40 हिजरी में अमीर अल मोमिनीन की शहादत होती है और 40 हिजरी में शहादत और वसीयत अमीर अल मोमिनीन जो थी, मौला ने एक तो वसीयत अपनी औलाद सारी को की और एक वसीयत सिर्फ मौला हसन और हुसैन को। ये कायनात का पहला इमाम है जिसके दोनों ही बेटे इमाम हैं, वरना हर इमाम बाकी औलाद को वसीयत अलग करता है और जिसने इमाम बनना हो उसे वसीयत अलग करता है, क्योंकि राज़े इमामत अगली हुज्जत के सिवा कोई समझ नहीं सकता। यहाँ दोनों इमामों को सामने बिठा के मौला अमीर अल मोमिनीन ने एक मुश्तरका वसीयत की कि जब मुझे हुस्न और कफन मुकम्मल हो जाए और ताबूत बना लो तो मेरे ताबूत को एक ऊंट पे सवार करके शहर से बाहर ले जाना। सामने से एक शख्स आएगा, वो तुमसे उस ऊंट की मुहार मांगेगा, बगैर शनाख्त पूछे मुहार दे देगा। ये राज़े इमामत था जो हसनैन के हवाले मौला हसन और हुसैन बाबे का ताबूत ऊंट पे लेके जा रहे थे, सामने से वही नकाब पोशा हुक्म इमाम के मुताबिक महार हाथ में दी, हाथ में देके 7 कदम पीछे हटने के बाद हसन बोल के मैं बता तू कौन है। इतना कहना था ये नकाब पोश ने कहा बाबा ने वसीयत की थी कि बगैर शनाख्त के पूछना, तो मैं जब वसीयत की थी तब वो हुज्जत थे, अब मैं हुज्जत हूं। इस वक्त का इमाम है, कोई ये ना कहे कि इमाम हसन ने सुनो इसलिए की कि लड़ाई पसंद नहीं थी। हसन बहुत बड़े शुजा थे। अगर मुझसे कहा जाए कि इमाम हसन की जंगे पढ़ तो मैं पहला एक जुमला पढ़ूंगा और आपके अज़हान से अंदाजा लगाऊंगा कि आप शुजाते हसन सुनने के लिए कितने तैयार हैं। हसन इतना बहादुर था कि अब्बास हसन का शागिर्द था। अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटों को वसीयत की थी और मुअर्रिख ने जैसे जंगे जमल की पहली सुबह लिखी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसी अंदाज से आपको जंगे जमल की पहली सुबह सुनाऊं। वो कहता जंगे जमल की पहली सुबह ये थी कि सफेद ये शहर तलू हो चुकी थी और सूरज बादलों की आगोश से सर उठाना चाह रहा था और अली ने मुसल्ले से सर को उठाया। अली ने अपने खेमे का पर्दा उठाया, पर्दा उठा के अली ने टीले पे खड़े होकर मैदान जमल का अंदाजा लगाया। जमल का अंदाजा लगा कि अली ने देखा कि मैदान में एक ऊंट खड़ा है और इर्द गिर्द 30,000 का लश्कर है। अमीर अल मोमिनीन ने अपने खेमे का पर्दा उठाने के बाद कहा मुझे अंदेशा है जैसे मूसा के जाने के बाद सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा होनी शुरू हो जाएगी। यह कह के अली अपने घोड़े की सीन पे आए। अगला मंजर बड़ा खूबसूरत लिखा है, उसका जैसे ही अली अपने खेमे से घोड़े की सीन पे सवार हुए तो अली के इधर 11 बेटे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के चल रहे थे, इधर 10 बेटे अकील के चल रहे थे, 7 मोहम्मद हनफिया चल रहा था, 7 हसन
हसन मुजतबा चल रहा था, साथ हुसैन करीम चल रहा था, साथ अब्बास चल रहा था। इतने बेटों के दरमियान अली ऐसे जा रहा था जैसे सितारों की ओट में चांद जा रहा होता है। अमीर अल मोमिनीन जाते हुए मोहम्मद हनफिया की तरफ देख के कहा, और नहजुल बलागा में अली का ये जुमला दर्ज है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मोहम्मद अपने ऊपर वाले दांतों को अपने नीचे वाले दांतों पे जमा ले और 30,000 के लश्कर में पहले बंदे की तरफ ना देखना, आखिरी सब में खड़े हुए आखिरी बंदे की तरफ देख और इन पे जाके ऐसे हमला कर कि अपने रिकाबों में पांव को जोर के साथ थामे रखना। इतना कहना था, मोहम्मद हनफिया ने हुक्म अली के साथ अपने घोड़े को दौड़ाया, सामने से 80 तीरंदाजों ने तीरों को छोड़ दिया। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को नीचे किया, तीरों को सर से ऊपर गुजारा, फिर अपने सर को सीधा किया, फिर घोड़े को दौड़ाया, सामने से फिर तीरों की बारिश आई। मोहम्मद ने फिर घोड़ा रोका, फिर तीर ऊपर से गुजर गए, फिर तीसरा मुकाम आया, फिर तीरों की बारिश आई। तीसरी जगह पे मोहम्मद का रुकना था, ये करीब से बिजली किसी तेजी से एक घोड़े सवार ऐसे निकला जो सफों को चीरता हुआ आखिरी सब वाले बंदे की गर्दन में पहुंच गया। मोहम्मद ने पूछा, ये कौन गया है? नाल के स्तर की आवाज आई, हसन मैदान में चला गया है, हसन मैदान में चला गया है। मोहम्मद हनफिया के चेहरे पे परेशानी आई। अली माथा चूम के कहते, तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरा और उसका क्या मुकाबला? तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। वो इमाम हसन को लड़ता देख चुका था, उसने कागज कलम मोहम्मद में नहीं भेजा, उसे खबर थी हसन मैदान में आ गया, हजारों में अकेला हसन। सफीन ये लड़ने आया था, ये जो सुलह की शर्तें लिखवा रहा था, यही सफीन लड़ने आया। और इसने पहले पहुंच गया था सफीन, और इसने आके फुरात का एक घाट जो है उस पे कब्जा कर लिया था, उस पे पहरा खड़ा कर दिया। अमीर अल मोमिनीन का लश्कर जब सफीन में पहुंचा तो सिपाहियों ने आके कहा कि मौला, सफीन के घाट पे कब्जा हो चुका है। अमीर अल मोमिनीन ने यूं मैदान जंग का मुआयना करते हुए जब देखा ना कि फुरात का एक किनारा पूरा इसके कब्जे में, अमीर अल मोमिनीन ने सिर्फ इतना कहा, कोई है जो इनसे घात खाली करे? अमीर अल मोमिनीन ने सिर्फ इतना कहा था, कोई है? हसन ने घोड़े पे जीन रखी, मैं आपको इमाम हसन का हमला सुनाऊं। आप सुनते हैं मिंबर से अब्बास का हमला, अली का हमला, खैबर, खंदक, हुनैन, बदर, ओहद, आज हसन का हमला सुनो। अकेले बोला हसन, फुरात के किनारे पे पहुंच गया। मुअर्रख कहता है कि आज हसन के लड़ने का अंदाज ये था कि अली को पता चल गया कि हसन चले गए। अमीर अल मोमिनीन अपने बेटों के साथ यूं अपनी पेशानी पे हाथ रख के अपने हसन की जंग दिख रहे थे। किताबें कहती हैं यूं फुरात का किनारा हजारों के लश्कर ने कब्जे पे लिया हुआ था। मौला इमाम हसन मुज्तबा चेहरे पे नकाब लेके गए, और चेहरे पे नकाब लेके जो ही फुरात के किनारे पे पहुंचे, किताब कहती है कि इमाम हसन ने अपनी तलवार को कलाई के साथ घुमाया नहीं, हसन ने अपनी तलवार को ऐसे रखा जैसे सराते मुस्तकीम होती है, और हसन फुरात के किनारे घोड़ा दौड़ाते जा रहे थे, सर गिरते जा रहे थे, घोड़ा चलता जा रहा था, सर गिरते जा रहे थे। जब मुतअद्दिद सर गिर चुके तो सामने से अमर बिन आस ने कहा, रुक जाओ, इससे जंग न करना, ये अली आ गया है, ये अली का कोई बेटा आ गया है, ये अली आ गया है, ये अली का कोई बेटा आ गया है। उधर अली के लश्कर में खबर पहुंच गई कि हसन चले गए हैं। किताबें कहती है माल के अश्तर ने घोड़े पे जीन नहीं रखी, नंगे घोड़े की पुष्ट पे मालिक भाग के सवार हुआ और अपने घोड़े को दौड़ाया, और मौला हसन के कदमों पे हाथ रखा, मालिक नौकरों के होते हुए आप क्यों आ गए? मौला ने फरमाया, बाबा ने कहा था कोई है, और हसन नहीं चाहता बाबा हसरत करे और हसन पूरी न करे। जमल में हसन, सफीन में अली, शाम वाला तख्त पे बैठा हुआ हसन, इसने कागज कलम भेजा कि शर्तें आप लिखें, जंग तो यही में मौला जीत गए।
कागज कलम उस घर से आया है जिन्होंने मोहम्मद को नहीं दिया था। शर्तें हमेशा फातेह मनवाती, शराइत हमेशा गालिब मनवाती। इसने मौला हसन से कहा शर्तें लिखी। मेरे शहंशाह ने मलूकियत बन चुकी थी ना, अब खिलाफत नहीं रही थी, अब बादशाहत बन चुकी थी, अब जिले सुभानी हो चुके थे, अब शहंशाहियत का दौर था, अब दरबारों की जगह बहुत ऊंचे ऊंचे मीनारों वाले महल बन चुके थे। इमाम हसन मुस्तफा ने पहली शर्त लिखी, आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पर। ये शर्त नहीं थी, ये मलूकियत का कत्ल था। मेरा ख्याल है 1 साल भी इमाम हसन लश्कर लेके जंग लड़ते, इतना वाज़ेह नतीजा ना निकलता। ये इमाम हसन ने शर्त के वार के साथ चेहरों से नकाब उठा दिया। आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल करे। आज तक मुअर्रख इस शर्त को बनी उमैया के दौर में भी मिटा ना सकता। जितने पढ़े लिखे अहले सुन्नत उलमा हैं, इसमें बहुत मुफस्सल बहस की थी। हमारे शहर फैसलाबाद के होते थे मौलाना इसहाक, हदीस के उन्होंने तो पूरे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड करवाए हुए इस एक टॉपिक इसी उन्वान में। जितना पढ़े लिखे अहबाब है जो पढ़ लिख जाते हैं उन्हें समझ कि इमाम हसन की शर्त की पहली सुलह ने मलूकियत का बिल्कुल। आज के बाद तो कुरान और सुन्नत पर अमल करें। अगर वो अमल करता था तो उसने क्यों कहा कि ये शर्त क्यों लिखी गई है? पूरी बनी बनाई मलूकियत की दीवार हसन ने जमीन पे गिरा दी कि एक तख्त और ताज के लालच में इसने शर्त तस्लीम कर ली और ये भी नहीं माना कि ये कितनी बड़ी जंग हार गया। इसका मतलब है कि ना ये कुरान पे अमल करता था, दूसरी शर्त मौलाना फरमाया आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे अली पर तबर्रा नहीं करे। सुनिएगा, समझिएगा। ये आज की मजलिस में इस एक बात में मैं थोड़ी रोशनी डालूं। मेरी कौम के बच्चों को जिनको हमें आज के इस मजहब को इनकी नस्लों तक पहुंचाना है, इनके ज़िहनों में पहुंचाना है। 70 साल मुसलसल मिंबरों पे सबोशतम ऐसे खजानों के मुंह खोले गए थे कि जो ज्यादा सबोशतम करके आता था उसे उसके हिसाब से दिरहम और दिनार दिए गए, लालच दिया था। आज 2021 में हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक ही आवाज की जा रही है कि शिया अहबाब को चाहिए कि मिंबर से तबर्रा ना पड़े। ये है या नहीं है? कुछ हमारे मेहरबान कहते हैं कि देखें मानना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए, हमें उनके बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए। हम ये मुआहिदा कर लेते अगर तुम हसन की शर्त मान लेते। हजूर आपने बहुत देर कर दी। आपको आज एहसास आया? आज आपको पता चला कि मिंबर पे तबर्रा नहीं होना चाहिए। आज आपको पता चला कि मिंबर पे किसी की किरदार खुशी नहीं होनी चाहिए। 70 साल जुमा के खतीब मिंबरों पे अपनी माओ के नापाक दूध की क़यामत। वो मौलवी मर गए, अली आज भी जिंदा है। वो मिंबर टूट गए, अली आज भी जिंदा है। वो बादशाह कब्रों के जहन्नम में चले गए, अली आज भी जिंदा है। जाओ आज पूरी दुनिया में जाके देख लो, तुम्हें तारीखों की किताबों से अलहदा निकल के देखो। जाओ पूरी दुनिया में जाके बताओ, मुझे बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ हज्जाज की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ अमर बिन आस की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ वो मुतवक्कल कहाँ गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मामूद रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मौदूद बिल्ला कहाँ गया, मुझे बताओ वो इतने बड़े बड़े उम्वी हुक्मरान जिन्होंने सरों की खोपड़ियों के
मीनार बनाए थे, जिन्होंने इंसानी लहू के गारे से दीवारें खड़ी की थी, आज उनकी कब्रें भी वीरान हो गई। आज उनकी कब्रों का भी किसी को नहीं पता। आज भी नजफ चले जाओ, अली की कब्र पे सजदा हो रहा है। करबला चले जाओ, हुसैन की कब्र पे सजदा हो रहा है। सिर्फ हुसैन की नहीं, सेहवन चले जाओ, कलंदर की कब्र पे कुछ लोगों को यह कानून बनाने में बड़ी जल्दी है। जितनी देर तक तो मैं पाकिस्तान में था मिंबरों से जवाब भी देता रहा और वाज़े तौर पे भी कहता रहा कि अगर आज आपको कानून बनाने की जल्दी है कि जो सहाबी की तौहीन करे उसे सजा होनी चाहिए, तो ये कानून फिर 2021 से नहीं बनेगा। अगर वाकया ही तुम इस्लाम की हमदर्द हो तो आओ फिर आज ही से इत्तेहाद का फार्मूला बना लेते हैं। आज ही से कह देते हैं कि हर मुसलमान एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करेगा, लेकिन ये कानून 40 हिजरी से लेके जाता जिसने जहां जिस सहाबी की तौहीन की 2021 के बाद ये चंद लोग हैं ना जी उंगलियों पे आ जाते हैं जो आज मिंबर पे अकीदा पढ़ रहे हैं, जिन पे एतराज किया जाता है, जिन्हें गाली कहा जाता है, जिन्हें एजेंट कहा जाता है, जिन्हें क्या क्या तमगे दिए जाते हैं सिर्फ मोहब्बत अहले बैत बयान करने के लिए। तो जितने ये लोग हैं इनकी मैं छोटा भाई होकर मिन्नत कर लेता हूं कि आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद पढ़ेंगे, आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान के हाशिए में लिख के देना पड़ेगा जिसने जिस दौर में चल, तू अली को इमाम नहीं मानता, सहाबी तो मानता है, जिसने अली को जहां गाली दी कुरान में पहले तू उसे काफिर लिख दे। आज हम कह देते हैं कि मिंबर से तवल्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन गुस्ताखों को शेल्टर देकर ये कानून बनेगा। हमसे उम्मी करदारों की इज्जत की तवक्को न रखना, हमसे नहीं होगी उमैया के लोगों की इज्जत। जिन्होंने खुल के रसूल की खानदान से दुश्मनी की, मिंबरों से अली के खिलाफ ज़ुबानें बोली। मौला ने फरमाया आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे ना बोले, उठाओ ये तख्त और ताज मेरे बाप की जूती का सदका है। आज के बाद मेरे किसी शिया पे हमला नहीं होगा। चुन चुन के मारे जा रहे हैं। सिर्फ एक जत्था एक कबीला मदीने में या मदाइन में तो मौला इमाम हसन के साथ नहीं बैठा था ना, पूरी दुनिया में जहां जहां मुख्तलिफ मुल्कों में अली के शिया बैठे। जाके शाम में कुछ अब इतना बता देता कि मेरी बीवी अली से प्यार करती है, तो उसके शौहर को इतना नवाज दिया जाता कि तू ही बीवी को कत्ल कर दे। बेटा कहता था कि मेरा बाप अली से प्यार करता है। इस कदर लोगों ने अली की मोहब्बत छुपा ली थी कि जनाब इमाम हसन ने मुख्तार अबू उबैदा सख्ती के जो बेटे मुख्तार के चचा के घर बना ली, साहब के घर जाके बना। किताबें कहती हैं कि हजरत मुख्तार के दिल में खौफ आ गया कि मेरा चचा मदाइन का गवर्नर है, कहीं ये इमाम हसन से बेवफाई ना कर दे। रात की तरीकी में जनाब मुख्तार अपने चचा से मिलने के लिए और मिलके कहने लगे कि मेरे ज़हन में ख्याल है अगर हम शाम के हाकम के हाथ इमाम हसन को बेच दें तो हमें बहुत ज्यादा माल और दौलत मिलेगा। इतना कहना था, चचा ने मुख्तार का गिरेबान पकड़ और तलवार खींचे। उसने कहा मेरे मरे हुए भाई का बेटा ना होता, मुझे अली की इज्जत के समय तुझे अभी कत्ल कर देता। और ये कह के उसे अपने घर के दरवाजे से बाहर यूं फेंका।
मुख्तार ने गर्दे पड़े हुए आंखों में आंसू और चेहरे पे खुशियां। चाचा ने कहा शर्म नहीं आती हंस रहा है? उसने कहा हंस इसलिए रहा हूं, इम्तिहान देखना चाहता था, क्या तू भी अली से प्यार करता? मुख्तार जैसा शख्स अपने चचा पे एतमाद नहीं करता। ये दौर था कि घर के अंदर माँ बच्चों के सामने अली का नाम नहीं लेती। अब बताएं कि इस दौर में अगर इमाम हसन सिर्फ मदीने को महफूज करते तो दुनिया के शियों को महफूज किसने करना? तीसरी शर्त मेरे मौला ने लिखवाई अपने मानने वालों के तहफ्फुज की। सुभान अल्लाह। इनको तो मानने वालों के तहफ्फुज के लिए गलत वजू करा के लोगों को बचाया। के वाक़ियात तो दोहराए नहीं जा सकते। कैसे कैसे इन्होंने शीयत का तहफ्फुज़ किया है, किस किस तरीके से किया है। और आप क्या समझते कि आज आप लावारिस हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे शहंशाह फरमाते मैं एक लम्हे के लिए तुमसे नजर उठा लूं, लोग तुम्हें दरिंदों की तरह खाते हैं। तुम्हारा इमाम है जो तुम पे साया किए हो। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस दौर में आज भी शाम का हाकम जिंदा है, खजाने आज भी बांटे जा रहे हैं, बेशक फितना गरी आज भी हो रही है। मदीने से कुछ लोगों ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा जी कि आप हमें नमाज तरावी क्यों नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने फरमाया मैं वो नमाज वो बिदअत नहीं करना चाहता जो मैंने मोहम्मद में नहीं देखी। इन्होंने कहा ठीक है तो हम तो पढ़ना चाहते हैं। इमाम हसन ने दुर्रे मार के इनको मस्जिद से निकाला और ये लोग शाम में जाके कहने लगे अली हमें नमाज नहीं पढ़ने देता। और शाम में मशहूर कर दिया गया कि अली नमाज नहीं पढ़ते। ये फितने का दौर है। बेशक इतनी फितना गरी हो चुकी है। कल वाली मजलिस में मैंने मुकम्मल तफसीली अंदाज में पढ़े थे की मजलिस में कि जाली हदीसें जिसे कहा जाता है किताब में फितना वज़ा हदीस, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी कि 2300 हदीस अकेले हाथ में शाम के लिए नबी की एक बीवी से नकल कर ली थी। अल्लाह और उन्हें कह दिया गया कातिब वही। और मुसलमान हुए वो मक्का में। फतह मक्का के बाद आयतें आई कितनी थी? ये सारे के सारे टाइटल थे, ये सारे के सारे अलकाबात थे आले मोहम्मद के जो चुराए गए। खालिद बिन वलीद को कहा गया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कैसी तलवार थी जो पहले काफिरों के हाथ में थी? मालिक बिन नवेरा का कातिल बेदर्दी के साथ नबी के साथ। अली का एक नौकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको हाकिम शाम ने अपने दरबार में लाके छड़ियों के साथ मारा, जख्मी कर दिया, हड्डियां सारी तोड़ दी, बूढ़ा साहब गिर गया। गिर के कहने लगा और इनकी बेटा कोई नहीं था, इनकी सिर्फ 7 बेटियां थी। ये करीब आके कहने लगा क्या मेरा तुझे अली से मोहब्बत करके अब तेरे बाद तेरी बेटियों का क्या बनेगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सर उठा के कहा मेरी बेटियां अली के हुक्म के साथ रात को सूरा वाक़िया पढ़ के सोती हैं, तू उनका रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता। इसने करीब खड़े होकर कहा, इसने कहा मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं लेकिन पूछना चाहता हूं तू मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सर उठा के कहा जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता है। इमाम हसन मुस्तफा को जब दरबार में बुलाया गया तो इसने दरबार में बुला के इसने दरबार में रश इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि आज मेरी खिलाफत मुकम्मल हो गई, शराइत आ गई, मैं खलीफा बन गया, मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया और हसन को खिलाफत से हटा दिया। दुरूद सारे हज़रात मिलके बाबा बारे दिगर बुलंद तर सलावत मीरे कारवां आशिकाने हुसैन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ज़ीनते सफ़ी आज़ाद जनाब बाबा से रुखसार शाह साहब मालिक इनका साया मातमे को सब
ये दौर, और इमाम हसन मुश्तबा को दरबार में बुला लिया। दरबार खचाखच भरा हुआ राशद। इसने दरबार में इमाम हसन के आने से पहले के हुक्मनामा नाफिज कर दिया। इसने कहा जब हसन दरबार में आए तो कोई दरबारी अपनी कुर्सी न छोड़े, ताकि हसन को पता चल जाए कि हाशमियों के मोहब्बत करने वाले खत्म हो गए, उम्वी मोहब्बत करने वाले जिंदा। दरबार में हुक्म देकर सबको कुर्सियों में बिठा दिया और एक भी कुर्सी दरबार में खाली न रहने दी कि कोई भी अपनी कुर्सी इमाम हसन को नहीं देगा। ये दरबार खचाखच भरा हुआ और जो ही इमाम हसन का पहला कदम दरबार में आया, तारीख कहती सबसे पहले ये उठ के खड़ा हो गया। बाद में लोगों ने पूछा तूने तो कहा था किसी ने नहीं उठना, तू क्यों उठ के कहा? मुझे हसन के परवरदिगार की कसम। जब हसन दरबार में आया तो हसन के पीछे एक आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था। वो मेरे करीब आया और मुझे कान से पड़ा, उठ देख रही ना हसन आ गया है। अब मैं जुमला शुरू करने लगा। बिस्मिल्लाह। अब इसने दरबार में मुख्तलिफ कोनों पे मुख्तलिफ लोग बिठाए हुए थे जिनको अपने खानदान के झूठे कसीदे याद करवाए हुए थे, और उन्हें कहा था जब हसन आके बैठ जाए तो इधर से पहले ये उठे, वो मेरे खानदान के फतह, उधर से मेरे बाप के, उधर से मेरे दादे के फतह। दरबार में हमारे कसायद पढ़ने चाहिए। और कैसा बदबख्त था कि तारीफी याद करवाई थी। तारीफ वो होती है जो खुद तारीफ बाबा याद करवाई। अब इमाम हसन मुश्तबा बैठे हुए हैं, इधर से कोटता तारीफ, उधर से कोटता, इधर से कोटता। इमाम हसन मुश्तबा का पहला लफ्ज सुनिएगा, इस पहले लफ्ज पर मैं जिंदगी मार। ये बैठा हुआ था तख्त पे और कहता था कि ये मेंबर रसूल पे बैठा। इमाम हसन मुश्तबा उठे और इमाम हसन मुश्तबा ने पहला लफ्ज कहा, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। यकीनन अली ही का बेटा कह सकता था। दरबार दुश्मन का, सिपाही दुश्मन के, खचा खच भरा हुआ दरबार, और इमाम हसन कह रहे उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। इमाम ने कहा हुज्जत के सामने, हक के इमाम के सामने अपने खानदान की झूठी तारीफें करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तो अगर तुझे अपने खानदान की तारीफें करनी है तो मैं हसन तेरे दरबार में खड़ा होके कह रहा हूं, अपने बाबा अली से लेके आदम तक और अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक तो जिसका कहेगा मैं तेरे दरबार में खड़ा होकर किरदार पढ़ता हूं। अगर तुझ में जरूरत है तो अपने सिपाहियों में से किसी के कान में अपनी मां का किरदार पढ़ के सुना। खानदान के लोग किसी के कान में अपनी मां का, मैं ऊंची आवाज में पढ़ता हूं, तो ऊंची भी नहीं, किसी के कान में अपनी मां का किरदार पड़ गया। किबला मैं आपसे दुआ लेने लगा, उसने कहा अच्छा हसन हम चुप रहते, तू बोल। इमाम हसन का फिर मैं अपना तारुफ करवाता हूं, मोहम्मदो समीरी, अलीयो अमीरी, हुसैनो वजीरी, जबरीलो फकीरी। मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है, हुसैन मेरे वजीर का नाम है, जबरील मेरे फकीर का नाम है। ये कहने के बाद इमाम हसन चंद कदम आगे बढ़े, कहते मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं शजरा तैयबा का समर हूं, मैं ज़मज़म का बेटा हूं, मैं सफ़ा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं हाशम का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूं। हाजियों को पानी हम पिलाते हैं, भूखों को खाना हम खिलाते हैं। कहत के दौर में तुम मेरे घर से रिस्क लेते थे। ये कहने के बाद इमाम हसन चंद कदम और आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहने लगे मैं इब्राहिम का बेटा हूं, मैं इस्माइल का बेटा हूं, और फिर मैं ही इब्राहिम को आग से बचाने वाला हूं, मैं ही इस्माइल की मुश्किल में मदद करने वाला हूं। ये कह के मौला हसन एक कदम आगे बढ़े, तू मेरे बाबा अली से मुकाबला करता है, क्या तू नहीं जानता अर्श अव्वल में मेरे बाप को समद कहते हैं, अर्श तमाम में मेरे बाप को अब्दुल गफ्फार कहते हैं, अर्श समा में मेरे बाप को कहते हैं।
कहते हैं, चौथे आसमान पे मेरे बाप को अब्दुर्रहमान कहते हैं। ये कहने के बाद हसन कहते हैं, मेरे बाप को तौरात वाले एलिया कहते हैं, अंजील वाले अभी कहते हैं, सबूर वाले तवी कहते हैं, कुरान वाले अली कहते हैं। मैं यासूब और दीन का बेटा हूँ, मैं कायद गरम और जलील का बेटा हूँ, मैं फातिह तरैन का बेटा हूँ, मैं नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह का बेटा हूँ, मैं मलूक हरम का बेटा हूँ, मैं जन्नत के मालिक का बेटा हूँ, मैं नबियों के मुशरफ कुशा का बेटा हूँ, मैं अल्लाह के राज का बेटा हूँ, मैं वहियों के अमीन का बेटा हूँ। जन्नत हमारी मोहब्बत में मिलेगी, जहन्नम हमारी दुश्मनी में मिलेगी। हम कब्र में आते हैं, हम हशर में आते हैं, हम कौसर में खड़े होंगे, हम सबील में खड़े होंगे। हमारी मोहब्बत ही क़यामत वाले दिन उम्मतों को फायदा देगी। ये कहने के बाद बिल्कुल उसकी आंखों के सामने जाके इमाम हसन इसके सीने पे हारा मुकाबला मुझसे करता है। मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में उधर बोला था, और मैं उसका भी बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में इधर बोला। मंजर बे अली था बस। शहादत के मरकज़ों, तुम्हारा दावा है कि तुम इल्म के मीनारों के जैसे हो। हम अल्लाह के खजानों की अमीन है। हम ही मोहम्मद हैं और हम ही अली हैं। दरबार दुश्मन का फजीलत हसन की बयान हो गई। इसे कहते हैं जादू, वो जो सर चढ़ के जब कुछ ना बचाना, जब इसके पास कुछ ना बचा, कोई तारुफ नहीं है, कोई फजीलत नहीं पड़ी जा सकती। अब इसने कहा आखिरी हमला करूं, आखिरी हर बाज दौलत का सहारा। नौकरों से कहना, देख नहीं रहे फरजंदे रसूल आए हैं, जाओ खजाने लेके आओ, सोने दिरहम दिनार मौला हसन के कदमों में ढेर कर। इमाम हसन ने यूं खजानों का ढेर देखा। क्यों? क्या हसन में हिंदा का बेटा हूं। जब ने सुना, करीम उठे, दरबार से बाहर निकले, गली में एक ताजर अली से मोहब्बत करने वाला गुजरा। उसने दुश्मन के दरबार में हसन को देखा, आगे कदमों पे हाथ रखा, मौला आप इसके दरबार में क्यों? उसने यूं कदमों पे हाथ रखा, मौला हसन की आवाज आई, वो खजाना उठा ले। जब कहना खजाना उठा ले, इसने जाता हुआ खजाने का नबी के हाथ में देखा, कहने लगा हसन रुक, पहले खजाना तो देख। मैं चुप, मैं फातिमा का बेटा हूं। इमाम हसन मुस्तफा ने शराइत लिख के इन्हें कुरान और सुन्नत की जंजीरों में जकड़ के फेंक दिया। देखिए, जब रसूल ने मक्का में ऐलान किया था ना कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्का वालों ने 7 कबीलों के सरदारों ने दिया था, अरब के गरीबों ने दिया था। सबसे पहले
تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ، بے شک سبحان اللہ کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے عزت ہی اتنی دے دی، وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، سبحان اللہ کیا بات ہے، تم جھوٹے سردار، اصل سردار تو یہ، انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے اصل اسلام کے ہیرو، سبحان اللہ جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، نبی کو نہیں چھوڑا، بے شک بسم اللہ کیوں؟ لالچ میں تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، محبت میں ہوئے تھے۔ اب جب رسالت مآب نے مکہ فتح کیا تو اب اسلام کا ایک سیاہ دور شروع ہوا کہ جگر خار کلمہ پڑھ رہی ہے، جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، بے شک جنہوں نے سب سے زیادہ آل محمد میں مشکلیں کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، بے شک بسم اللہ بسم اللہ بے شک یہ کلمے کے دروازے سے صحن اسلام میں آ گئے، خدا نے خبر ہو گئی کہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، بے شک خدا نے قرآن میں دیکھو کافر ایک شکل کا تھا، اللہ نے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون، مسلمان کی شکل ایک ہوتی، خدا ایک صورت بھیجتا، مسلمون، خدا نے مسلمانوں کے لیے دو صورتیں علیحدہ علیحدہ بھیجی، مومنون، منافق یہودی نہیں ہوتا، منافق مسلمان بیٹھا مسلمانوں میں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے، خدا قرآن میں بار بار آیتیں بھیج رہا تھا، یہ منافق ہے، اذ جاءکم المنافقون، یہ جب یہ تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، یہ تجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ تیری شکایتیں کرتے ہیں، بار بار مذمت میں آیتیں آ رہی تھی، اللہ نام نہیں لے رہا تھا، نشانیاں بتا رہا تھا۔ اب یہ اسلام کا وہ دور تھا جب اسلام میں ایک کثیر تعداد منافقوں کی داخل، اللہ نے نام نہیں بتائے، نبی نے بھی نام نہیں بتائے، اگر نبی برملا کہہ دیتے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی ہے، اسلام کی تبلیغ وہیں پر رک جاتی۔ بے شک مصلحت امام کیا ہوتی ہے، توحید کی پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ بے شک بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ آج کہتے دیکھیں جی بعض بندے ہم سے سوال کرتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، امتی کا حجت کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ سوال بھی حجت پہ شک ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک اگر امام نے آپ کی مرضی سے چلنا ہے تو امام تو آپ ہوئے، امام کہتے ہیں آگے چلنے والا، کیا بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام نے ایسا کیوں کیا، مولا حسن نے کیوں لڑائی نہیں کی، مولا علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، یہ حکمت ہے امام، بے شک حکمت امام یہ ایک علیحدہ چیپٹر، ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کہاں کا امام کی حکمت کیسے کیسے بعد میں لوگوں کے سامنے کھلی۔ خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تھی، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کیوں تعمیر کی، بندہ کیوں قتل کر دیا، جب خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تو اہل بیت کی حکمت امتی کو کیسے سمجھ؟ بس آخری جملوں کے قریب ہو گیا، اب یہ منافقت اسلام میں داخل ہو چکی۔ رسول یہ پورا جمع غفیر لے کے چلتے 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 اسلام کو لے آئے 10 ہجری تک، بسم اللہ یہ 10 ہجری تک اسلام کا آنا میرے صاحبان، میری قوم کے نوجوان، یہ آسان نہیں تھا، 40 سال مکے کی محنت، بے شک بسم اللہ بسم اور اللہ عام محنت نہیں، پتھر کھائے، بے شک سوشل بائیکاٹ کی، بے شک 3.5 سال شیب ابی طالب میں نبی کے خاندان نے پیاسے اور بھوکے گزارا،
इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबतें, और अब इस्लाम का पौधा जवान हो रहा। सुभान अल्लाह। इस्लाम का पौधा जवान हो रहा था। रसूल ने 10 हिजरी तक जहां तक इस्लाम को लेके आना था, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। खुदा ने कहा कि अब हमें इस्लाम में कुछ सफाई चाहिए। अबे हम थोड़ा सा इस्लाम में मोमिनून और मुनाफिकून को अलग करें। रसूल ने कहा कैसे करेंगे? इनके साथ लड़ाई करूं, जंग करवाऊं? नहीं। कैसे करूं? उन्होंने कहा तलवार तूने उठानी नहीं, ना तुझे उठाने देंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तू गदीर में मिंबर बना, हम एक ही ऐलान के साथ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज तक वो ऐलान चल रहा है। आज के दिन काफर तेरे दीन से मायूस हो गया। मायूस वो होता है जिसे कोई आस लगी हो, आस लग गई थी, मायूस हो। मुनाफिकत अलग हो गई। जियो। अब मुनाफिकत अलग हो गई। अब अमीरुल मोमिनीन का दौर आया। अब 25 साल अली जैसे इमाम का खामोश है। बेशक। बिस्मिल्लाह। एक जुमले को सारी जिंदगी मौला अली के तवीज बना के सीने में रखिएगा। मौला अली ने फरमाया था इमाम या अदल करता है या गोशा नशीनी करता है। हाय हाय हाय। तीसरा काम इमाम के पास नहीं है। इमाम या अदल करेगा या गोशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम उम्मत को अपनी नजरों से हटा देता है। लोगों ने कहा कि अली ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इसको इस अंदाज में पढ़ा करो, अली ने दरवाजा, अपना दरवाजा बंद किया था, अपना नहीं बंद किया। अली ने उम्मत के लिए अपने दरवाजे को बंद कर दिया। जाओ ठोकरे खाओ। और 25 साल के दौर को मौर्रख ने क्या लिखा? अली कुरान जमा कर रहा है। अब उन्होंने कोई ना कोई तो गोशा नशीनी की वजह अली कुरान जमा कर रहा है। इसमें भी अली का राज है। इसका मतलब है कि कुरान अली ही के घर में था। आज तक कुरान तरतीब नज़ूली के एतबार से, हाँ जी बेशक, आज भी सारे मुसलमान मानते हैं जैसे नाज़िल हुआ था वैसे नहीं है। जो सबसे पहली आयत आई थी वो कुरान के सेंटर में पड़ी थी। सबसे पहले इकरा बेस में कुरान की आयत आई। वो कहते हैं नज़ूली एतबार से नहीं, तरतीब नज़ूली के एतबार से। मौला अली ने जो कुरान जमा किया था वो नज़ूली एतबार से था। हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं। बेशक। कोई ये बकवास है, ये इल्जाम है कि शिया कहते हैं हमारे 40 सिपाही। नहीं। हम तहरीफ कुरान के कायल। लेकिन जो अली कुरान दरबार में लेके आए थे ना जमा करके, अल्लाह फरमाया था तख्त पे बैठ गए हो, ये कुरान मैंने जमा कर दिया। ये बिल्कुल आयत है उस एतबार से जैसे अली हम तुम्हारा कुरान नहीं। अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी अबा को अपने ऊपर किया, फरमाया फिर मेरे आखिरी बेटे तक इसको देखोगे भी नहीं। जाओ फिर अब मुझ पे एक मजलिस पे मिंबर पे सवाल हो गया तो उन्होंने कहा अगर अली लेके गए थे जब अमीर अल-मोमिनीन का दौर आया था। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल कि जब अमीर अल-मोमिनीन का दौर आया था तो अली ने फिर वही कुरान जो था वो अली ने उम्मत को क्यों? जवाब सुनो, अगर अली अपने दौरे खिलाफत में नया कुरान लेके आते उम्मत में 2 कुरान हो जाते, फिर उसके बाद हर दौर में कुरान बदलता। जैसे आज तौरात और अंजील असल हालत में नहीं मिलती, आपको कुरान के नुस्खे भी असल हालत में नहीं मिलते। उम्मत के कुरान 2 ना हुए वजह अली है। अमीर अल-मोमिनीन की वजह से। सुभान अल्लाह। अमीर अल-मोमिनीन का ये दौर 25 साल का एक मुकम्मल मजलिस चाहिए। 25 साल का दौर अली ने बिल्कुल खामोश घर में नहीं गुजारा। अमीर अल-मोमिनीन ने मदीना के बाहर
मदीना से थोड़ा हट के बिस्मिल्लाह एक अपनी ज़रई ज़मीन अमीर अल-मोमिनीन ने बनाई। इस इलाके को यम्बो कहते हैं। यम्बो इस इलाके का नाम है। बिस्मिल्लाह फार्म हाउस था मौला अली। मौला अपना ज्यादा वक्त वहां पे गुजारते। मौला ने पहली बार कपास वहां काश्त की थी। कुओं से पानी लेके जमीनों तक पानी पहुंचाना ये मौला अली की है। जमीन को जरखेज करना ये अली का हुक्म। सुभान अल्लाह। अली कहते जमीन से दाना लो तो जमीन का हक उसे वापस करो। क्या बात। ये मौला अली ने पहले कपास काश्त ही नहीं होती थी, पहली बार अली ने की थी। ये वही कपास थी जो अली के घर जाती थी और वही रुई सैयदा काटती थी, चादरें बनाती थी। ये उसी कपास की रुई का बना हुआ रुमाल था जो आज भी हुर के माथे पे। सुभान अल्लाह। 24 कुएं मौला अली ने अपने हाथों से खोदे, सुभान अल्लाह। जिसमें एक कुआं सिर्फ बेचा गया था। 23 कुएं आले मोहम्मद की मलकी के। सुभान अल्लाह। अमीर अल-मोमिनीन मुसलसल यम्बो में रहते थे, जमीनें जरखेज करनी, जमीनों की काश्त करनी। सुभान अल्लाह। और वहीं पे अमीर अल-मोमिनीन बकवास है मौत का, यहूदी के बाग में मजदूरी। जो मजदूरी करे वो हाकम का गुलाम हो जाता है। और इमाम कभी भी उम्मत का गुलाम नहीं होता। अली अपने ही बाग में मजदूरी। ये बनी उमैया ने झूठी हदीसें लिखी थी कि अली किसी यहूदी के बाग में काम करता है। अमीर अल-मोमिनीन ने अपने बागात बनाए, अपने चश्मे, सुभान अल्लाह। मौला अमीर अल-मोमिनीन यम्बो में रहते थे। ये वही यम्बो था कि जब 63 हिजरी को सादात वापस आए तो फिर जब शब खून मारा गया था मदीने में तो आले मोहम्मद मदीने में मोहल्ला बनी हाशिम में नहीं थे, यम्बो वाले घर। मौला सज्जाद मदीने वापस आके अपने पूरे खानवादा के साथ यम्बो वाले घर में चले गए। जब शब खून मारा गया तो मदीने की औरतें नंगे पांव दौड़ी यम्बो की तरफ मौला सज्जाद से पनाह लेने के लिए। बिस्मिल्लाह। और किताबें कहती वो सज्जाद जो कूफा और शाम में रस्सियां पहन के चला था, जब मुसलमानों की औरतें सज्जाद के दरबार में तलवार लेके अली बन के बाहर। सुभान अल्लाह। यजीद की फौज पीछा करती करती जब यम्बो में पहुंची तो देखा सज्जाद अकेले लश्कर के साथ। इन्होंने सज्जाद को देखे कहा तू वही हुसैन का बेटा नहीं, तो शाम में कैद था, तू तो लड़ता नहीं था। फरमाया तब हम तुम्हारे मेहमान थे, आज ये हमारे मेहमान। हसन जैसे इमाम को मदाइन में जाके पनाह लेनी पड़ गई। मदाइन में मारने वालों का दावा करने वाले, जो मैं नहीं कहूंगा वो शिया नहीं थे, वो मौला हसन के मानने वाले थे ही नहीं, खवारिज थे जो एक लालच के साथ लश्कर के साथ 10,000 का लश्कर था साद बिन उबैदुल्लाह का, जिसने मदाइन के बाहर जाके मौला हसन से पूछे बगैर लश्कर साजी करके पड़ाव डाल दिया था कि मैं हाकिम शाम से जंग करूंगा। और उधर से तीर के साथ खत बांध के दीवार पे फेंका गया, दरख्त के साथ मारा गया। 7 खत आए और 7 खतों में कहा कि हम तुम्हें 1 लाख दिनार देंगे, तो हसन का लश्कर छोड़। इसने 1 लाख दिनार में अपना सौदा किया। 10,000 का लश्कर लेके ये हसन को तन्हा मदाइन में छोड़ के चला गया। पीछे 4,000 बच गए। अजब नहीं था कि हसन पे हमला हो जाए। अली के बेटों ने हसन के घर को, हसन के खैमे को घेरे में ले लिया। हसन का तहफ्फुज बनाया अली के बेटों। मुसल्ले पे थे मेरे मौला हसन। जब उम्मत ने नीचे से आके मुसल्ला खींच 9 बार जहर मिला इमाम हसन को, 9 बार। आज इमाम हसन को ऐसे रोना जैसे हुसैन की हसरत। सदा तो पहले सदा 1 बार नहीं 9 बार जहर मिला।
نبینا شخص ہائے 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 اپنی چھڑی کے نیچے ہائے زہر لگا کے ہائے خود نبینا تھا نہیں، نبینا بن کے یوں ٹٹولتا ہوا ہے. ہائے ہائے مولا حسن مسلح پہ تھے. ہائے اس نے حسن کے پاؤں پہ آ کے اس لینے کو چھپا. حسن کا پاؤں زخم ہے. یہ جس نے زہر دی یہ اشہس بن کیسے کندی کی اس ملعونہ کے دو بھائی تھے، محمد بن اشہس، اسحاق بن اشہس. دونوں آل محمد کے قاتلوں میں سے تھے. اس کا بڑا بھائی وہ تھا جس کا ظلم پڑ ہوگا تو تمہاری چیخ نکلے گی. یہ وہ ملعون تھا جس نے مسلم کے چہرے میں تماچا مارا تھا. اس کا دوسرا ظلم بتاؤں؟ اس کا دوسرا ظلم یہ تھا اس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. اس کا تیسرا ظلم بتاؤں تو ہائے ضرور کہنا، یہ وہ ملعون تھا جس نے زینب کا اون گھوڑے سے گرایا. اس کی بہن کے لیے اسے سازش کے ساتھ بھیجا گیا. اسے لالچ دیا گیا کہ تو حسن کو زہر دے دے، تو شام آ جانا، میں تیری اپنے بیٹے یزید سے شادی کروا کر شام کی ملک کا. یہ ملعونہ بعد میں شام گئی بھی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تو حسن جیسے امام سے وفا میرے بیٹے سے کیا کرے گی زہر شام سے آئی تھی. اس نے کہا 9 بار زہر ملی ہے، اثر ہی نہیں ہو رہا. انہیں نہیں پتا کہ حجت مرضی سے موت کو طاری کرتی. اس نے کہا میں بار بار زہر دلوا رہا ہوں، حسن پہ اثر نہیں ہوا. اس نے آخری بار طب جاننے والوں سے کہا اتنی شدید زہر کہ اب کی بار حسن بچے نہ. زہر تیار کی، زہر کا نام رکھا گیا زہر حلال. نہ یہ اس سے پہلے کسی انسان کو دی گئی، نہ حسن کے بعد کسی کو دی. زہر بنانے والوں نے کہا تھا دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگا دی جائے، وہ خون دینا شروع کر دے. دریا میں اس کا ایک دن کا پھینک دیا جائے تو آپ بھی جانور مر جائیں. اس نے وہ زہر محمد کے نفیس بیٹے دودھ میں ملا کے حسن کے سامنے. یہ رخصاصن یہ اگلا جملہ ماتمیوں کی ہائے کے لیے ہے. بے بسی دیکھنا، اس جملے میں غربت ہے حسن کی. دودھ کا پیالہ حسن ہاتھوں میں لے کے کہتے میں تیرا اچھا امام نہیں، میں تیرا اچھا امام نہیں. اس نے کہا ہاں بے شک آپ سے اچھا امام اللہ کی کائنات میں آسمان سایہ میں. جس نے اس جملے پہ امام حسن کی بے بسی پہ ہائے نہ کیا، تمہیں مولا حسن کا واسطہ اب دوسرے جملے پہ چپ نہ رہنا، ہائے ضرور کہتے ہیں. جب مولا حسن نے کہا نا پیر صاحب کا میں تیرا اچھا امام نہیں، اسے کہا اچھا امام ہے. مولا حسن کی داڑھی آنسوؤں سے بھر کے رو کے کہتے جودہ میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے، میرے قاسم کی ابھی یتیمی کی عمر نہیں ہے، میرے قاسم کی عمر بڑی چھوٹی ہے، 3.5 سال کا میرا بیٹا ہے. جودہ میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے. زہر امام کے حلق سے نیچے گئی، امام کا جگر پہ ہاتھ آیا. اس ملعونہ نے دونوں کاندھوں سے پکڑ کے امام کو اپنے گھر میں
اس کی خواہش تھی کہ امام کے دم میرے کھلے میں نکلے. اس نے امام کو کاندھوں سے پکڑ کے جب زبردستی بٹھایا, امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, جانے دے, جو تو سوچ رہی اب ہوگا نہیں, اب میں بچوں گا نہیں, مجھے ایک بار بہنوں سے ملنے دے. آدھی رات مدینے کی گلیاں, محمد کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے, روتا روتا فروا کے دروازے پہ آیا. بی بی فروا کا دروازہ بند تھا. امام حسن دروازے پہ ہاتھ رکھ دے, قاسم کی ماں دروازہ کھول. اتنا کہنا تھا, بی بی فروا نے تڑپ کے دروازہ کھولا. جب دیکھا حالت کیا ہے, جناب حسن کا امامہ کھلا ہوا ہے, گریبان چاک ہے. رو کے کہتی, مولا آپ کی حالت کس نے بنائی؟ رو کے دے, مجھے چھوڑ, میرا قاسم جگا. جب امام حسن کو زہر ملی, جناب قاسم کی کتنی عمر تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی. 3.5 سال کا قاسم. ماں نے اٹھایا, بابے کے سینے پہ لٹایا. قاسم رو کے کہتا, اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کہتی, لال جا, گرم ریت نہیں, بابے کا زخمی سینہ ہے. قاسم بابے کا ماتھا چوم کے کہتا, بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ امام حسن رو کہتے, قاسم میرا سینہ چھوڑ, پھپھی کے دروازے پہ جا, اسے جا کے بتا بابے کو زہر مل گئی ہے. اتنا کہنا تھا, جناب قاسم بابے کے پاؤں پہ ہاتھ دے, بابا مجھے موت کی اطلاع نہیں دینی آتی. امام حسن کی آواز ہے, قاسم میرے قریب آ. قاسم کا امامہ اتارا, قاسم کا گریبان پھاڑا, آستینیں الٹ کے مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی. رو کہتے, بتانا نہ, تیری حالت دے کے پہچان, تیری حالت دے کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو. قاسم ایک بات کا خیال رکھنا, اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ. نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی, جو مسیح میں رو رہے, روتی آنکھوں سے ایک دعا پہ آمین ضرور کہہ دینا. میرے اللہ کوئی بہن سو رہی ہو, اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. آرام کر رہی تھی بستر پہ علی کی شہزادیاں, یا قاسم آدھی رات مدینے کی گلیاں, کبھی آستینیں دیکھتا, کبھی پھٹا ہوا گریبان دیکھتا. قاسم زینب کے دروازے پہ, دروازہ بند نظر آیا. قاسم نے روتے روتے اپنا سر بی بی کے دروازے پہ رکھا, آہستہ آہستہ کہتا, اماں دروازہ کھول, بابے کو زہر مل گئی ہے. اماں دروازہ کھول, بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے. علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی, رو کہتی, اماں فضا چراغ روشن کر. فضا رو کے کہتی, بی بی ابھی نماز شب کا وقت ہے. رو کہتی, میں نے خواب دیکھا ہے, میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, قبر محمد کی پھٹ گئی ہے, مسجد نبوی کے مینار گر گئے ہیں. اماں دعا کر میرے حسن کو خیر ہو. بی بی فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کی پیشانی دہلیز پہ آئی. فضا رو کے کہتی, بچے کون ہے جو صبح صبح ہمارے دروازے پہ آ گیا؟ آواز آئی, اماں پہچان. فضا رو کے کہتی, ماں قربان ہو جائے, میرا امیر قاسم. رو کے کہتا, امیر قاسم نہیں, تیرا یتیم قاسم. اجروں کو اماں ماں زینب کو جگا. علی کی بیٹی کی آواز ہے, کلثوم. اجڑ گئے, اور میرے پیٹ کے گھر کا چراغ بجھ گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکم بدہن, کوئی بھائی مر رہا ہو, بہن قریب نہ جائے. مرتے ہوئے بھائی بہنوں سے دیکھے نہیں جاتے. ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ادھر جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا شروع ہوا. مولا حسن کی آواز ہے, قاسم کی ماں جب میری زینب آئے, میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا. ادھر جناب فروا نے دشت پہ چادر ڈالی, زینب کا ہاتھ کانٹے پہ آیا, رو کر چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. میری ماں نے 3 جمادی ثانی کو وصیت کی تھی, زینب اللہ نے تجھے 2 بھائی دیے ہیں, ایک 72 ٹکڑے دے گا, ایک کربلا میں 72 لاشیں. علی کی بیٹی آ گئی علی کی ساری اولاد, ساری اولاد آ گئی. مولا حسین کے سینے کے ساتھ مولا حسن نے ٹیک لگائی. زہر کی شدت ہے, آنکھوں سے لہو, پاؤں
की तलियों से लहू। मौला हसन की आवाज़ आई, हुसैन मेरी ज़ैनब कहाँ है? फरमाया हसन तेरे पाँव में बैठी है। मेरी कलसूम कहाँ है? तेरे बाएं कदमों में बैठी है। मेरी रुकैया कहाँ है? फरमाया दैनी की बेटियों के पीछे बैठी है। मेरा अकबर कहाँ है? तेरे साथ खड़ा है। मेरा कासम कहाँ है? तेरे बाएं हाथ के साथ बैठा है। हसन की आवाज़ आई, हर कोई आ गया, किसी ने अब्बास को नहीं बुलाया। इतना जुमला कहना था, फिजा रो के कभी मौला 9 बार बुलाने गई हूँ, दीवारों पे टकरे मार रहा है, रो रो के कहता है और मैं भी जिंदा था, बतूल के बेटे को जहर मिल गई और क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दो? अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। हर गई सारी औलाद। मौला अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में, हुसैन गाजी का ख्याल रखो। सुनोगे हसन मौला की वसीयत, हुसैन गाजी का ख्याल रखो। अगली वसीयत सुनो, अकबर करीब आओ, अकबर को करीब बुलाया। कासम का हाथ पड़े अकबर के हाथ, अकबर कासम का ख्याल रखना। 3.5 साल का बेटा उठा के हुसैन के हाथों में देगा, हुसैन मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुझे करबला में उम्मत घेरेगी, काश हसन उस दौर में होता, मैं तुझसे पहले कुर्बान हो जाता। मेरा कासम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, मेरे कासम को मैदान में जरूर भेज देना। हसन रो के कहते, हुसैन मैं वादा करता हूं, उम्मत कहती है कि हसन ने लड़ाई नहीं की थी, करबला में मेरा कासम ऐसे लड़ेगा, हर लाश उठेगी, मेरा कासम इकट्ठा करना पड़े। मेरे कासम की लाश नहीं उठेगी। जो मौला कासम की मेहंदियां मनाते हो, सारी औलाद को वसीयत है। अब्बास किया हुसैन के हवाले, अली की बेटियां की अब्बास के हवाले, कासम किया अकबर के हवाले, इसरार इमामत हुसैन के सपोर्ट, सजाद का सलाम, कासम का सलाम, अकबर का सलाम, बहनों का सलाम, भाइयों का सलाम, भाई के सीने पे भाई का सलाम। हुसैन की आवाज़, ज़ैनब कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारा गया मदीने में मोहम्मद का बेटा, तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया, मैंने बड़ी आसानी से पढ़ लिया। अगली सदर में जिस बंदे के सीने पे गोश्त है ना जिगर बन के, उसकी आंखें जरूर तड़पेगी। भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। हुसैन जनाजा उठाने लगे, अब्बास पिछले पाए पे था, हुसैन की आवाज़ गाजी अगले पाए पे आ। अब्बास ने हसन का अगला पाया थामा, दूसरा पाया हुसैन ने थामा, तीसरे पाए पे अकबर चला गया, चौथे पाए पे सजाद चला गया। भाई जनाजा उठा के मदीने के बाजार में आए, मोहल्ला बनी हाशिम की पहली गली का मोड़ आया, सामने से 19 बंदों का हजूम आया। देखे कहते हुसैन कौन मारा गया है? कह लगे मेरे भाई को जहर मिल गई है। कह लगे कहाँ लेके जा रहा है? कह लगे कब्र मोहम्मद पे दफनाने जा रहा हो। एक मलाउन 4 कदम आगे बढ़ा, पहले कब्र मोहम्मद तुम सैयदों की जगीर नहीं है, वापस लेके जा भाई का जनाजा। हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास के बदन पे लर्जा तारी हुआ। इधर हुसैन ने गाजी की हालत देखी, हुसैन ने एक दफा छत्तों की तरफ देखा। हुसैन की आवाज आई, अब्बास जनाजा वापस लेके चल, अब्बास जनाजा वापस लेके चल। अभी अब्बास की आंखें खुली थी, या एक औरत ने सफेद रुमाल से इशारा किया। 300 तीर कमानों से आया, 300 तीरों का कमानों पे आना था। अब्बास ने जनाजा जमीन में रखा, अब्बास जनाजे के सामने बाजू फैला के खड़ा हो गया। आवाज तीर मारने का शौक है, करबला आ जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। और मेरे मरे के जनाजे पे, और मेरे गरीब के जनाजे, हौसला, मेरे मरे के जनाजे पे, मेरे मरे के जनाजे पे तीर न मारो। जब मुसलसल तीर चलते रहे, ज़ैनब और कलसूम अभी दरवाजे पे खड़ी थी, या अब्बास हवेली की जानब दौड़े, मदीने की गलियों में ज़लज़ला आया। ज़ैनब रो के कहती है, कलसूम दुआ कर, लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास
عباس توڑ کے اندر گیا. زینب رو کدی غازی خیر ہے, عباس خیر ہے, عباس بتا ہوا کیا ہے. ادھر اتنا جملہ کہنا تھا, عباس نے امامہ اتار کے زینب کے قدموں پہ رکھا. رو میرا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ, مجھے میری تلوار دے دے, اور میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے. ادھر عباس کا ہاتھ تلوار پہ آیا, حسین کی آواز ہے زینب, عباس کو رو, جنازہ واپس آئے. تیروں والا جنازہ, لہو والا جنازہ, خون والا جنازہ. غریب میں غریب کا بھی جنازہ گھر سے جائے واپس گھر نہیں آتا. آخری 1 منٹ پڑھنے لگا, جنازہ گھر آ گیا. حسین نے بدلنا تھا بھائی کا کفن. جنت سے جبریل جنت کا کفن لے کے آیا تھا. اس کے مصطفیٰ نبی نے کیے تھے 5 حصے, ایک اپنا رکھا, 4 بیٹی کو دے دیے. حسین کی آواز ہے زینب کفن ہے, اب اللہ جانے گلیوں میں ماتم کرو گے. ابھی زینب رو کے کہتی ہے 5 حصے تھے جو نانے نے جنت سے منوایا تھا. ایک نانا لے گیا, ایک ماں زہرا کو دے دیا, ایک باب علی کو دے دیا, ایک میں نے حسن کو پہنا دیا تھا. حسین اب ایک ہے, وہ تیرے حصے کا ہے. حسین کی آواز ہے میرے حصے کا کفن لا. بھائی کے گلے میں بائنڈا کبھی تو کیا پہنے گا, روکے گا مجھے کفن کی ضرورت. ہائے حسن کہے جو رونے کے لیے آیا ہے, جسے خبر ہے کہ آج جنازہ اٹھنا ہے, مجھے کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی. آخری جملہ میں ایسے چاہتا ہوں کہ چیخوں میں جنازہ اٹھے, محمد کی بیٹی راضی ہو. جیسے آباد گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں, ویسے زہرا کے گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے. ادھر حسن کا تابوت گھر میں پڑا تھا, ابھی تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا نا, اس جنازے پہ دیکھنا, اس پہ لگے ہوں گے تیر. تم شبیہ تابوت پہ تیر دیکھو گے. زینب دیکھ رہی تھی بھائی کے بدن پہ تیر. حسین کی آواز ہے زینب کو حسن کا تیر نظر نہیں آنا چاہیے. روتی روتی حسین کے قریب آئی, رو کدی علی کے سارے بیٹوں کو کہے حجرے سے جاؤ. حسین حسن کی میت چھپا رہے تھے, زینب رو کدی ناک چھپا. حسن ایک دفعہ حسین بھائیوں کو لے کے گھر سے باہر جا. حسین رو کدی زینب تیر کون کھینچے گا, رو کدی تو کھینچنا اکبر کے جگر سے پرچی, تو نکالنا اصغر کی آنکھ سے تیر, تو نکالنا غازی کا تیر. حسن جانے زینب جانے. زینب روتی روتی حسن کے جنازے میں بیٹھی, بی بی نے نادی علی پڑھ کے پہلے تیر پہ ہاتھ ڈالا. زینب نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا, قبر محمد پہ آئی. رو کبھی اٹھنا نہ قبر سے, تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے, ایک بار اپنے امیر کا جنازہ دے, پھر بتا تیرے امیر کا جنازہ ایسا, تیرے غریب کا جنازہ, تیرے غریب کا جنازہ. بجائے گے